Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Fayyaz Muhammad. Dear student, I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. We are discussing Advanced Web Application Development course and this is lecture number 18. Let's see what we will cover in today's lecture. Learning objective are as follows. Number one, first of all, we will have an overview of ASP.NET Core application. Then we will discuss the project structure description of ASP.NET Core application. And in the last, we will try to develop a data entry application using ASP.NET MVC. Dear student, this is the summary of last lecture that we have covered. Following topics we have discussed in our previous lecture. These are the online resources that are constantly being consulted by me for the creation of these lectures. You are also required to consult these online resources. Let's start. Overview of an ASP.NET Core application. This figure depicts the whole process of ASP.NET Core application. At number one, an HTTP request is made to the server to the home page. The request is passed to the web host, reverse proxy, or IIS or Ninjax or Apache web server, and that request is forwarded by these any of these web server to your ASP.NET Core application, and this is our ASP.NET Core application. Here the ASP.NET Core web server receives the HTTP request. ये रिक्वेस्ट आ रही है, वो रिक्वेस्ट रिसीव करेगा एंड प्रोसेस इट, passes it to middleware. जैसे ही इस वेब सर्वर ने इसको रिसीव किया एप्लीकेशन के, उसने उसको मिडल वेयर को या मिडल पाइपलाइन को असाइन कर दिया. द मिडल वेयर प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट एंड passes it on to the MVC middleware. It is another middleware. Here the MVC middleware generates an HTML response, means it processes the user request and that response is passed back to the middleware to the web server, and that web server provides HTML response to the user, means HTML response is sent to the browser. This is the overview how an ASP.NET Core application works. Let's see further. MVC project structure. Dear student, as you know, we are using Visual Studio 2019 for the development of web applications. When we start a new project, as I told you in previous lecture, that a solution and a project along with a solution is created. This is what Visual Studio provides us when we create a new project. Here you can see this is the solution and this is the project. The name of the solution is Web Application 6 and it contains only one project. As I told you previously that a solution can contain more than one project, and this is the name of the project. The name of the project is
web application 6, and these files and folders are automatically created by Visual Studio 2019 using the predefined template. Dear student, this is another representation of the previous project. Here we expanded www root folder and it contains further folders. These are folders are also created automatically by Visual Studio. Next, this is another representation of the same project. Here we expanded the views folder and it contains home folder, share folder, and these two files. Dear student, these all will be created by the Visual Studio automatically as per your template selection, and we have selected the template MVC micro model view controller template. Project file and folders. Now let's discuss uh, the following items that are created by Visual Studio template for ASP.NET Core MVC application. Number one is connected services. Number second is dependencies, properties, WW root, controllers, models, views, app settings.json, program.cs, and startup.cs. Dear students, these files and folders will be automatically created and we will discuss what are these. Number one, connected services. Uh, Connected services contains detail about all the service references added to the project. For example, if you want to access to cloud storage of Azure storage or mobile services to perform CRUD, create, read, update, delete operation with your table, then the reference will be contained in connected services. Next is dependencies. All the references of NuGet packages, .NET Core Runtime and ASP.NET Core Runtime libraries or any other libraries will be included in the dependencies. Next is the property. Properties contains a launch setting.json file, and that file contains configuration details about what action to perform when the application is executed, and it contains detail like IIS setting, application URL, authentication, SSL, port details, etc. जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे विजुअल स्टूडियो को यूज करने के लिए, रन करने के लिए, तो ये सारी की सारी सेटिंग वो यहाँ से लेगा और आपकी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करेगा. आप इन सेटिंग्स को अपनी जरूरत के मुताबिक you can edit these settings as per your requirements. Next is the www root folder. This is a folder and it contains other folders to categorize all the static files. The static files can be HTML file, CSS file, JavaScript file, or images. And these files are required by the project and generally served to the user. And it will not contain any C sharp files. It will only contain static files. And the folders, CSS files are stored in CSS folders, JavaScript files are stored in Java folder, JS folder, external libraries like Bootstrap, jQuery are stored in library folder. And we will check
when we will create our demo application. Next is the three folders. The three folders are the models, views, and controllers. These folders are also automatically created. These folders are used to contains the files that support the component of MVC, model, view, controller, architecture or pattern. अब ये तीन फोल्डर बन जाएंगे और ये तीन फोल्डर क्या करेंगे, ये तीन फोल्डर मुख्तलिफ फाइलें अपने पास स्टोर करते हैं। और ये फाइलें किस पर्पस के लिए यूज हो रही होती हैं, जो मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न है ये उसको सपोर्ट करती है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस मॉडल व्यू कंट्रोलर इन अ डिटेल कि व्हाई वी आर यूजिंग मॉडल व्यू controller and what it facilitates us. Controller folder. Controllers handles all the incoming requests and all the controllers needed for the project are stored here. ये कंट्रोलर फोल्डर में हम तमाम के तमाम कंट्रोलर्स जो आपकी एप्लीकेशन यूज करेगी वो स्टोर कर देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कंट्रोलर इन एक्चुअल है क्या चीज। यहाँ पे हम सिर्फ यही बता रहे हैं, कंट्रोलर्स आर यूज टू हैंडल ऑल द इनकमिंग रिक्वेस्ट। जितनी भी यूजर से रिक्वेस्ट आ रही होंगी वो कंट्रोलर हैंडल करेगा। नेक्स्ट मॉडल्स। मॉडल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ द एप्लीकेशन आर अ व्यू मॉडल। मतलब आपकी एप्लीकेशन जो भी डाटा यूज कर रही है वो मॉडल्स में रिप्रेजेंट होगा या व्यू मॉडल में। और व्यू मॉडल क्या रिप्रेजेंट करता है, व्यू मॉडल रिप्रेजेंट डाटा दैट विल बी डिस्प्लेड इन द यूजर इंटरफेस, कि यूजर के सामने जो डाटा आ रहा होगा जनरली उसको हम क्या कह रहे होंगे, व्यू मॉडल कह रहे होंगे। और मॉडल फोल्डर के अंदर तमाम के तमाम मतलब जो मॉडल्स या डाटा आपके एप्लीकेशन में यूज हो रहा है वो फाइलें मॉडल्स फोल्डर में स्टोर होंगी। नेक्स्ट इज द व्यूज। व्यूज आर यूज टू रिप्रेजेंट द यूजर इंटरफेस। मतलब व्यूज डिस्प्ले मॉडल और व्यू मॉडल डाटा। व्यूज यूजर को आपकी एप्लीकेशन का डाटा प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। अब किस तरह से दिखाना है, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट एंड सिचुएशन। और ऑल व्यू प्रोवाइड्स आल्सो प्रोवाइड्स एन ऑप्शन टू लेट द यूजर मॉडिफाई मॉडल और व्यू मॉडल डाटा। व्यू फिर यूजर को फैसिलिटेट भी करता है कि वो डाटा को या व्यू मॉडल डाटा को एडिट या चेंज कर सके। अब ये कैसे करेगा, नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ ये समझ लें कि व्यूज का एक फोल्डर क्रिएट होगा और वो व्यूज का फोल्डर क्या करेगा, वो जितने भी व्यूज, जितनी जिस तरह से भी डाटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो सारी की सारी फाइलें इस फोल्डर में होंगी। व्यूज रिलेटेड टू ए कंट्रोलर। अब देखें एक कंट्रोलर है, कंट्रोलर रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, तो उस कंट्रोलर से रिलेटेड जितने भी व्यूज होंगे वो व्यूज के फोल्डर में एक और फोल्डर बन जाएगा बाय द नेम ऑफ द कंट्रोलर एंड दैट विल स्टोर all the views related to that particular controller. For example, home controller, the name of controller is home. Home controller related views are stored in the home folder and that home folder will be under the view folder. And next, all the shared views, there can be shared views which can be used by various controllers throughout the application are stored in shared folder. Very simple, तमाम के तमाम ऐसे व्यूज जो आपकी एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो रहे होंगे, बहुत सारे कंट्रोलर, those are not specific to a particular controller but are used by the controller, तो वो सारे के सारे किस में होंगे, शेयर्ड फोल्डर में स्टोर होंगे। और ये शेयर्ड फोल्डर भी आप जो विजुअल स्टूडियो 2019 का MVC टेम्पलेट है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए क्रिएट करता है। नेक्स्ट,
app setting.json. It is a file and it contains configuration settings how ASP.NET Core app will load on startup. जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो किस तरह से लोड होगी, और it contains information or settings just like database connection string or अदर थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू हार्ड कोड, जिनको जरूरत नहीं होती कि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर हार्ड कोडिंग करें। इस जैसा कि इसके नाम से इट्स ऑब्वियस फ्रॉम द नेम ऑफ दिस फाइल ऐप सेटिंग डॉट जेसॉन जावा स्क्रिप्टिंग ऑब्जेक्ट नोटेशन, द फाइल फॉर्मेट विल बी जावा स्क्रिप्टिंग ऑब्जेक्ट नोटेशन, और इसको आप मैन्युअली अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट is the program.cs file. This is most important file of any of the ASP.NET Core project. Program.cs file contains a class. The name of that class is program, and this class is entry point of the web application, and this class is used to initiate, build, run the IIS and Kestrel, and host the application and finalize the configuration of the application using startup class. एक और क्लास होगी स्टार्टअप क्लास। ये प्रोग्राम क्लास उस स्टार्टअप क्लास को कॉल करेगी, उसमें कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड्स की मदद से ये उस ऐप को कॉन्फ़िगर करेगी। एंड द कोड फॉर द प्रोग्राम क्लास इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे ही आपने कोई भी वेब ऐप शुरू की वो डिफॉल्ट टेम्पलेट के मुताबिक प्रोग्राम क्लास प्रोग्राम डॉट सी एस ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। अब ASP.NET Core web application is actually a console project or console application. ये ASP.NET Core वेब एप्लीकेशन भी बुनियादी तौर पर कंसोल ही एप्लीकेशन होती है, और यू नो वेरी वेल कंसोल ऐप स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम द एंट्री पॉइंट दैट इज पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन इन प्रोग्राम क्लास। ये देखें, हम शुरू से देख चुके हैं, हमने अपने शुरू के लेक्चर्स में भी देखा कि अगर कंसोल एप्लीकेशन भी बनाई है तो वो एप्लीकेशन भी इसी प्रोग्राम क्लास से क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। और उसका कौन सा मेथड, ये मेन मेथड वो स्टार्टअप के लिए यूज करती है। इन द मेन मेथड वी क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक होस्ट that is web server and ASP.NET Core pipeline for the web application to handle HTTP request। तो मेन मेथड में हम क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं अपनी एप्लीकेशन का। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट इज द startup.cs. This is a file and it contains startup class. This class is also automatically created by the Visual Studio template for you. This class has two primary functions. Number one is configure the services of dependency injection DI and request pipeline, which handles all HTTP requests made to the web app. दो प्राइमरी फंक्शंस हैं। पहला एक सर्विसेज कॉन्फ़िगर करना है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, हम नेक्स्ट देखेंगे व्हाट आर डिपेंडेंसी इंजेक्शंस। और दूसरा रिक्वेस्ट पाइपलाइंस, कि जो HTTP रिक्वेस्ट हम अपनी वेब ऐप को फॉरवर्ड करेंगे या यूजर कोई भी HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा वो रिक्वेस्ट पाइपलाइन ने हैंडल करनी है। Startup.cs class has two methods. Number one is configure services. This method is optional, but if it exists, then it is the first method invoked by the web host. And the purpose of this method is configure the services and add the services in the dependency injection container.
Next method of startup class is configure, and this method is mandatory and it is invoked after the configure services method, or that's why it comes after the configure services method. The purpose of this method is configure the ASP.NET Core request pipeline. And what is request pipeline? The components that make up the request pipeline are called middleware, and these middleware are used to handle and modify incoming HTTP requests and serves things like static content or error message or error pages, etc. Basically, these middleware and these services are the classes, and these classes are used in startup for the configuration of our pipeline. Dear student, in today's lecture, we will have a demo data for data entry application using ASP.NET Core MVC. The goal is to demonstrate ASP.NET Core in action. A Details of the today's application are as follows. Imagine that a friend has decided to host a New Year's Eve party and that he has asked you to create a web app that allows his invitees to electronically RSVP means please respond to require confirmation of an invitation. He has asked for these key features. Number one, there must be a home page that shows information about the party. Number second, there must be a form that can be used to RSVP. And in the last, there must be a summary page that shows who is coming to the party and who is not coming to the party. Now we will create an ASP.NET Core project and use it to create a simple application that contains the above defined features. So, dear student, now we are going to start our today's demo application. Let's start our creation of the demo application. Dear student, let's start Visual Studio. Visual Studio is loading. Here we will select create new project as usual, and from here we will select ASP.NET Core web application. Then we will click next button, and the name of our application will be party invites, or it will be stored this default location. Then we will click create button. After clicking it, here it is asking for the template. We are using web application model view controller template, and then we will click the create button. Now it is creating predefined project structure. Dear student, this is the predefined structure provided us by Visual Studio 2019 for advanced web application development. And uh, this project structure contains all the files and folders as we discussed earlier in our lecture. Let's suppose if we click this is showing us these folders and an icon file.
If we click this views folder, then it is displaying two other folders. The name of other folder is home and shared. This is default view folder for home controller, and this is default controller created automatically by Visual Studio 2019. As dear student I discussed, this is the program file, and if we click it, it displays the class program, and this code is automatically built by Visual Studio for us. That's why Visual Studio provides a fastest development cycle. Here, this is the main method, the entry point for ASP.NET Core Web Application, or we are calling create host method build. आप यहाँ देख सकते हैं हम इसको कॉल कर रहे हैं, और जब वेब बिल्डर में या वेब होस्ट हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसके साथ ही स्टार्टअप में हम एक क्लास स्टार्टअप भी कॉल कर लेते हैं, और ये हमारी स्टार्टअप फाइल है। ये स्टार्टअप फाइल को क्लिक किया और ये कंटेन करती है स्टार्टअप क्लास, और इस स्टार्टअप क्लास के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, इट हैज टू मेथड्स. नंबर वन इज कॉन्फ़िगर सर्विसेज एंड नंबर सेकंड इज कॉन्फ़िगर। और यहाँ पे हम जो अपनी एप्लीकेशन के लिए रिक्वेस्ट पाइपलाइन और सर्विसेज, हम यहाँ पर सारी की सारी क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और ये डिटेल्स हम कमिंग क्लासेस में फिर डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से ये पैटर्न कंट्रोलर इज इक्वल टू होम, एक्शन इज इक्वल टू इंडेक्स, बला बला बला, ये क्या चीज़ें हैं, ये सारा का सारा हम कमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर एप्लीकेशन। Visual Studio is compiling and starting IISR Kestrel। ये देखें, आप इस आइकन को देख रहे हैं, ये इसकी मदद से हमें पता लग रहा है इसने वेब सर्वर को शुरू किया। और इधर देखें, चूंकि ये एप्लीकेशन इसी कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो रही है, तो सर्वर का नाम लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर ये विजुअल स्टूडियो ने ऑटोमेटिकली इसको असाइन कर दी। आप चाहें तो अपनी मर्जी का भी पोर्ट नंबर दे सकते हैं। जैसे मैंने अपने लेक्चर में बताया, हम उसको फाइल को ओपन करेंगे सेटिंग्स को, और वहां पे हम पोर्ट नंबर डिफाइन कर देंगे। दिस इज द व्यू provided by default to us. Dear student, as I told you, we are going to develop party invites application. First of all, we will change this view. How we will change this view? We will close our application, and after closing application, we will look here. This is the default view presented to us. अब हम इसको क्या करेंगे, एडिट करेंगे, ताकि ये हमारी मर्जी की एप्लीकेशन डिस्प्ले कर सके। हमने इसको खोला, ये कोड उसके अंदर ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो ने डेवलप करके हमें दे दिया, क्रिएट करके दे दिया। सबसे पहले हम इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, डिलीट करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं वेलकम टू पार्टी, और फिर उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या रिजल्ट हमारे सामने आता है। अब ये देखें, वो सारा जो पहले था वो खत्म हो गया। वेलकम टू पार्टी ये हमारे सामने ये डिस्प्ले हो रहा है। अब हम इसके नीचे कुछ फर्दर डिटेल्स भी देना चाहें तो हम वो भी दे सकते हैं। अब फर्दर डिटेल्स हम यहाँ क्या लिख देंगे, ये हेडिंग 1 पे हमने किया, फिर हमने H3 पे, हेडिंग 3 पे हमने उसको बताया वी आर गोइंग टू हैव
एन एक्साइटिंग पार्टी। ठीक हो गया। अब उसके बाद फिर हमने इसको एग्जीक्यूट करके देखा, तो छोटी छोटी सी चेंजेस हैं, आप थोड़ा सा इससे फेमिलियर हो जाएंगे तो फिर हम इसको फर्दर डेवलप करते चले जाएंगे। ये देखें, वी आर गोइंग टू हैव एन एक्साइटिंग पार्टी, वेलकम टू पार्टी, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। इसको हम वहां से फिर चेंज भी कर लेंगे। नेक्स्ट, अब हम अपने इस पेज को डायनामिक बनाना चाह रहे हैं। अब डायनामिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने कंट्रोलर पे चले जाएंगे जहां से ये पेज कॉल हो रहा है। आप देखें, हमारा ये पेज इस कंट्रोलर से कॉल हो रहा है। ये ऑटोमेटिकली सारे के सारे मेथड्स विजुअल स्टूडियो ने हमें प्रोवाइड किए, हम इनको डिलीट भी कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इनकी जरूरत पेश आएगी फिर हम इनके साथ इनको यूज कर लेंगे। फॉर द टाइम बिंग हम इनको क्या करते हैं, अभी डिलीट कर देते हैं। ये सारे के सारे हमने डिलीट किए, और उसके बाद ये लास्ट वाला भी मेथड मैंने क्या किया, आई डिलीटेड इट। और ये हमारा वो एक्शन मेथड है जो वो व्यू रिटर्न करता है इंडेक्स के नाम का। ये इंडेक्स के नाम का ऑटोमेटिकली ये इस व्यू को रिटर्न करता है। हम फर्दर फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से इन्हांस मजीद कर सकते हैं। अब हम इस व्यू को डायनामिक बनाना चाह रहे हैं। उसको डायनामिक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ क्या किया, इंट आर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको वैल्यू असाइन कर दी डेट टाइम डॉट नाउ डॉट आर एच ओ यू आर। ये हमने असाइन कर दिया कि इसको इस वेरिएबल को, इंट आर को। उसके बाद अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डिसीजन स्टेटमेंट यूज की इफ, और यहाँ इस कंडीशन इसको मतलब एक्सप्रेशन को यूज किया, इफ आर इज लेस देन 12 तो क्या मैसेज दे। ये इफ का ब्लॉक हो गया। एल्स में हमें वो क्या मैसेज दे। अब हम ये क्या कर रहे हैं, सिंपल सी शार्प को यूज कर रहे हैं और उसकी मदद से हम कोई वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर लेंगे। पिछली दफा हमने व्यू डेटा यूज किया था, अब हम क्या कर लेते हैं, व्यू बैग यूज कर लेते हैं। व्यू बैग डॉट ग्रीटिंग्स इज इक्वल टू, हमने कहा गुड मॉर्निंग, और उसके बाद सेमीकोलन आ गया। सिमिलरली अगर फॉल्स है तो हमने कहा व्यू बैग में एक डाटा, ये हम फिर नेक्स्ट वी विल डिस्कस के व्हाट डू मीन बाय व्यू बैग व्यू डाटा ग्रीटिंग्स। और उसमें हमने फिर क्या पास कर दी, एक स्ट्रिंग पास कर दी, गुड आफ्टरनून। स्पेलिंग हम ठीक कर लेते हैं, गुड मॉर्निंग के सेमीकोलन। ये हमने अपने व्यू में थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की अपने उसको डायनामिक बनाने के लिए। अब हम अपने व्यू पे आ जाते हैं। अब ये व्यू कंटेन करता है सिंपल HTML। अब इस व्यू में हमने वो डाटा जो कंट्रोलर में है वो हमने पास करना है या डिस्प्ले कराना है। अब वो डाटा इसको कैसे मिलेगा, यहाँ पर हम ऐड सिंबल यूज करेंगे, फिर व्यू बैक डॉट ग्रीटिंग्स, जो वहाँ प्रॉपर्टी का नाम रखा था कंट्रोलर में वही नाम हम यहाँ पास कर देंगे। सॉरी, ये ग्रीटिंग्स दोनों जगह पे ग्रीटिंग हो गया, इधर भी देख लें। अब ये ग्रीटिंग नजर आ रहा है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट हमारे सामने आता है। अब देखें, ये ऑटोमेटिकली गुड मॉर्निंग डिस्प्ले कर रहा है। अगर टाइम जैसे ही 12 से बढ़ जाएगा, 12 PM ऑनवर्ड,
1 PM 2 PM होगा तो इधर ये ऑटोमेटिकली क्या लिख देगा, गुड इवनिंग लिख देगा। इस तरह से हमने इसको अपने पेज को क्या बनाने की कोशिश की, डायनामिक बना लिया। अब डायनामिक बना लिया, वी आर गोइंग टू हैव एन एक्साइटिंग पार्टी, ये भी हमने लिख दिया। अब हमें करना क्या होगा, अब हम चाह रहे हैं कि कोई यूजर वो इस वेबसाइट पे आए और अपनी कॉन्सेंट, अपनी विलिंगनेस, अपने आने ना आने का हमें कंफर्म करे कि वो पार्टी अटेंड करेगा या नहीं करेगा। अब व्हाट वी विल डू, वी विल चेंज दिस व्यू। हमने एक पैराग्राफ टैग यूज किया और उस पैराग्राफ टैग के अंदर हमने एक टेक्स्ट दे दिया, इफ यू वांट टू ज्वाइन प्लीज क्लिक द ज्वाइन। हमने ये लिखा कि अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ज्वाइन को क्लिक करें, और देखते हैं फिर हमारे सामने क्या रिजल्ट आया। ये देखिए, इफ यू वांट टू ज्वाइन प्लीज क्लिक द ज्वाइन। अब ज्वाइन में क्या क्लिक करें, कोई कोई यहाँ पे नहीं है। अब हम एक लिंक उसको दे देंगे, वो यूजर ज्वाइन को क्लिक करे तो वो उसको किसी दूसरे पेज पे ले जाए जहां वो अपनी इंफॉर्मेशन उसको पास करेगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम एंकर टैग यूज कर लेते हैं, एंकर, और फिर यहाँ पे हम देते हैं एच रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ अपने कंट्रोलर का नाम लिखा, और यहाँ पर हमने RSVP, जो हम फॉर्म या जो हम लिंक जिस पे हम इसको जंप कराना चाह रहे हैं उसका हमने नाम लिख दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, ज्वाइन लिख दिया, और इसको यहाँ से ख़त्म किया। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या नज़र आएगा सामने, आउटपुट ऑफ दिस, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस। अब हम यहाँ आगे देखें, ये ज्वाइन को उसने ब्लू कलर का कर दिया, एक लिंक शो किया। अब इस लिंक को अगर हम क्लिक करते हैं तो व्हाट हैपेंड, कहता है नो पेज फाउंड फॉर द दिस एड्रेस, इस एड्रेस पे उसे कोई पेज नहीं मिल रहा। ये लोकल होस्ट ने मैसेज उसको कन्वे कर दिया, क्यों नहीं। अब देखें, जब हमने इसे कॉल किया, ये इसने जंप किया होम कंट्रोलर पे, और होम कंट्रोलर पे जाने के बाद अब वो ढूंढ रहा है कि RSVP के नाम का कोई मेथड मुझे मिलना चाहिए। तो यहाँ RSVP के नाम का कोई मेथड नहीं है, तो हम RSVP के नाम का पहले यहाँ मेथड क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, आई एक्शन रिजल्ट RSVP। ये RSVP हमने ये एक मेथड बनाया, और इसमें हमने क्या कराया, रिटर्न व्यू। हमने कहा जी व्यू रिटर्न कर दे, सेमीकोलन, और उसके बाद फिर इसको शुरू किया। अब देखते हैं वो क्या, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस। I click this join button. No, this error is displayed in front of you. The view RSVP was not found. The following location were searched. अब इन्हें carefully look these two lines carefully. फर्स्ट ऑफ ऑल उसने जंप किया व्यूज के फोल्डर पे, फिर होम, और फिर वहां ढूंढने की कोशिश की RSVP। उसके बाद उसने जंप किया व्यूज पे, फिर उसने जंप किया शेयर्ड पे, फिर उसने किसको ढूंढने, RSVP के व्यू को ढूंढने की कोशिश की, वो नहीं मिला। अब मिलता भी कैसे, चूंकि हमने RSVP का व्यू अभी क्रिएट नहीं किया, तो लेट्स क्रिएट अ व्यू विद द नेम ऑफ
RSVP। अब होम को हम राइट क्लिक करेंगे और जैसे मैंने बताया अब ये हमें प्री डिफाइन आइटम टेम्पलेट्स प्रोवाइड करेगा। जैसे हम यहाँ आगे ऐड पे आने के बाद ये व्यू, या हमने क्लिक किया न्यू आइटम को, पहले इसको क्लिक करके देख लेते हैं और ये हमें प्लॉट ऑफ ऑप्शंस, लॉट ऑफ बिल्ट इन प्री डिफाइंड आइटम टेम्पलेट्स दे रहा है। हमने कौन सा टेम्पलेट सेलेक्ट किया, रेजर व्यू, और देखें बाय डिफॉल्ट जैसे ही रेजर व्यू सेलेक्ट किया उसने उसका नाम दिया index1.cshtml, ये उसकी एक्सटेंशन है। हमने यहाँ पर उसका नाम चेंज किया और उसका नाम दे दिया RSVP और हमने ऐड का बटन प्रेस किया। अब आप देखें ये RSVP इसमें हमारे होम फोल्डर में ऐड हो गया और इधर देखें तो उसने डिफॉल्ट ये कुछ हमें प्रोवाइड कर दिया। हम इसको भी डिलीट कर देते हैं और इसमें सिंपल हम डिस्प्ले करा लेते हैं RSVP। ये HTML है सिंपल, आप चाहें तो पूरा पेज बना लें RSVP। ये कंटेंट्स हैं हमारे किसके, RSVP व्यू के। ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुई और हमने ज्वाइन का बटन क्लिक किया, देखें RSVP हमारे सामने लिखा हुआ आ गया, लेकिन ये कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। नो, व्हाट वी विल डू, we will change our view, and let's suppose we want to bold or italicize it, then we will use HTML and CSS to change it। तो वो HTML ही पेज है, ये HTML पेज है। आपको यहाँ हेडर फुटर नहीं नजर आ रहे, मतलब हम वो लगा लेते हैं HTML और उसके बाद हम डिफाइन करते हैं बॉडी, बॉडी के बाद हम डिफाइन करते हैं टाइटल और टाइटल में लिख देते हैं RSVP और उसके बाद ये RSVP यहाँ से इसको हमने डिलीट किया, यहाँ हम लिख देते हैं इसको H1 और हमने क्या कहा RSVP और उसके बाद यहाँ हमने एक और टैग कर लिया हॉरिजॉन्टल रूल का। उसके बाद हमने इसको सेव किया एंड देन अगेन वी एग्जीक्यूटेड इट। देखिए अब आप देख सकते हैं कि ये RSVP बोल्ड भी हो गया, हेडिंग 1 हो गई और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल रूल भी उसने पुट कर दिया। अब हम अपने इस व्यू को देखते हैं केयरफुली। इस व्यू में आप देख सकते हैं, देखिए हमने यहाँ इसको गलत यूज किया और ये इस तरीके से यूज नहीं होना था। इसको हमने यहाँ से उठाया, इधर आ गए, इधर आने के बाद हमने क्या किया, हेड, ये हेड और हेड में हमने क्या कर दिया, ये टाइटल टैग आ गया और ये बॉडी टैग, इसको भी हमने यहाँ से यहाँ पे एंड किया। और जैसे आप जानते हैं वो HTML में अगर इस तरह के कोई टैग्स के एरर्स हों तो वो उसको इग्नोर करता है। अब ये हमारा एक फॉर्मल HTML डॉक्यूमेंट बन गया, एक व्यू बन गया, लेकिन अब स्टिल ये व्यू हमें कोई और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। अब हम क्या चाह रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि यूजर यहाँ पे अपनी को इंफॉर्मेशन इनपुट के तौर पे दे जो सिस्टम अपने पास रिकॉर्ड कर ले, सो दैट वी कम टू नो कि हु इज गोइंग टू अटेंड दिस पार्टी। नो, वी क्लिक इट ज्वाइन, देखें RSVP उसी तरीके से नजर आ गया। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक HTML फॉर्म में, ताकि हम HTML फॉर्म बनाकर यूजर से इंफॉर्मेशन ले सकें। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल, यहाँ पे फॉर्म का टैग यूज करेंगे, ये फॉर्म एंडिंग और क्लोजिंग टैग आ गया और फॉर्म का कोई ना कोई हम यहाँ पे एक्शन डिफाइन कर देंगे कि कौन सा उसने एक्शन लेना है। वो एक्शन फिर उसी तरीके से हम कहेंगे होम स्लैश, अब कौन सा एक्शन लेना है, अब वो हम यहाँ पे उसको कह देंगे कि रिस्पॉन्स एक्शन वो ले
या रिस्पॉन्स एक्शन को वो कॉल करे, और मेथड कौन सा यूज करे। अब आप फेमिलियर हैं प्रीवियस कोर्सेज से, यहाँ पे हम मेथड उसको बता देंगे पोस्ट का। अब हम अपना फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे फिर उसी तरीके से एक पैराग्राफ लिया, उस पैराग्राफ में हमने लेबल यूज किया, और लेबल फॉर किसके लिए यूज करना चाह रहे हैं, अब हमें कुछ भी नहीं पता हम किसके लिए यूज करना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो अब हम जिस तरह का डाटा लेना चाह रहे होंगे उसी तरह का हम फॉर्म डिजाइन करेंगे। अब हम किस तरह का डाटा लेना चाह रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि जो यूजर इस वेबसाइट पे आए, जो हमारी पार्टी अटेंड करना चाह रहा है, वो अपने से रिलेटेड डाटा प्रोवाइड करो। वो डाटा क्या होगा, नाम, ईमेल, कांटेक्ट, और आएगा या नहीं आएगा, विल कम, विल अटेंड और नॉट विल अटेंड। तो उसके लिए हम एक मॉडल बना लेंगे, और ये मॉडल कहाँ बनेगा, मॉडल फोल्डर में। जैसे मैंने पहले बताया, ये वाला ये मॉडल ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो ने हमें बना बनाया दे दिया। अभी हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है, हम अपना एक मॉडल इसमें क्रिएट करते हैं। सिमिलरली हमने किसको क्लिक किया, राइट क्लिक किया, और फिर ऐड बटन पे आ गए, ऐड बटन पे न्यू आइटम, और नीचे देखें वो क्लास शो कर रहा है ऑप्शन, हमने इसको क्लिक किया तो देखिए यहाँ वो क्लास का नाम पूछ रहा है। तो यहाँ हम अपने उस क्लास का नाम दे देते हैं GUEST, गेस्ट, और क्लिक किया। अब देखें उसने एक हमें क्लास बनाकर दे दी गेस्ट के नाम से, लेकिन दिस क्लास हैज नो मेथड्स एंड नो फंक्शंस। अब हम अपने नो प्रॉपर्टीज, अब हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लेते हैं जिस तरह का हमने डाटा इससे लेना है। पब्लिक ये एक्सेस मॉडिफायर यूज किया, और यहाँ पे हमने लिख दिया गेस्ट नेम, सॉरी पहले लिखेंगे उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग, और फिर लिखा गेस्ट नेम। और जब हम इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करें तो ये क्या करे, या हमने वो उसके मेथड गेट सेट डिफाइन कर दिए। उसके बाद हमने एक और प्रॉपर्टी डिफाइन की, वो भी स्ट्रिंग टाइप की थी, उसका नाम हमने रख लिया कॉन्टैक्ट, और उसको भी हमने क्या किया, गेट सेट। उसके बाद एक और हमने की पब्लिक स्ट्रिंग, और उसको नाम हमने रखा ईमेल इस प्रॉपर्टी का, और इसको भी हमने क्या किया, गेट और सेट किया। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की, पब्लिक विल अटेंड, और इसको हमने रख दिया बूलियन टाइप का, ये ट्रू या फॉल्स होगा। और उसके बाद इसके भी हमने मेथड डिफाइन कर दिए। गेट सेट में वो जो वैल्यू विल अटेंड में होगी वो हमें रिटर्न कर देगा, गेट में हम ले लेंगे, सेट में हम उसको वैल्यू असाइन कर देंगे। बाय डिफॉल्ट इसको जो मिलेगी वो ऑटोमेटिकली इनको कॉल करके अपने पास स्टोर कर लेता है। अब ये हमारा एक मॉडल बन गया। इस तरह का डाटा हम इस एप्लीकेशन से प्रोसेस करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने अभी अपने लेक्चर में आपको बताया। तो हम क्या करेंगे, RSVP अपने फॉर्म पे आ जाएंगे, और यहाँ पे फिर हम उसी तरह डिफाइन करना शुरू कर देंगे गेस्ट नेम, कि जी हम लेना चाह रहे हैं गेस्ट नेम, ये कोलन। आफ्टर दैट फिर हमने क्या किया, यहाँ यूज किया, सॉरी, इनपुट, और उसके बाद नेम इज इक्वल टू, वही जो मॉडल में नाम रखा था वही हम यहाँ नाम यूज कर लेंगे, और इस इनपुट टैग को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे सामने ये क्या लेकर आ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर हम ज्वाइन को क्लिक करें तो देखिए उसने एक फॉर्म के दो एलिमेंट, गेस्ट नेम और एक टेक्स्ट बॉक्स उसके सामने बना दिया। अगर हम वापस होम को क्लिक करें तो इस पेज पे आ जाएंगे। इस ज्वाइन को कॉल करने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ से भी उसको कॉल कर सकते हैं कि कंट्रोलर होम, और फिर हम उसका नाम दे देंगे RSVP, और प्रेस एंटर। देखें ये इधर से भी हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हमने उसको लिंक कर दिया
एंकर या एंकर टैग की मदद से एक हाइपर रेफरेंस उसका क्रिएट किया, उसको क्लिक करें तो वो इस व्यू पे ले आता है। अब इस व्यू को हम रिफाइन करने की कोशिश करते हैं, फर्दर एलिमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं। लेबल फॉर किस लिए यूज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमने उसका वो दूसरी प्रॉपर्टी जैसे कांटेक्ट थी तो ये किया, यहाँ हमने लिखा कांटेक्ट और उसके बाद इसको भी इनपुट डिफाइन किया। हमने क्या किया, इनपुट नेम और यहाँ पे क्या नाम उसका रख लिया, कांटेक्ट। अब ये सिमिलर हम करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ हमने उसको क्लोज किया और इसको भी हमने ये पैराग्राफ ये वाला टैग यहाँ क्लोज किया। फिर हमने पेज खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने फिर पी टैग यूज किया, उस पी टैग में फिर सिमिलरली लेबल टैग यूज किया और उसमें फॉर किस लिए यूज करना चाह रहे हैं, हमने कहा ईमेल के लिए यूज करना चाह रहे हैं। बाद में हम देखेंगे इनके ग्रुप्स कैसे बना लेंगे। या हमने उसको क्लोज किया और उसमें लिखवा लिया ईमेल कोलन और उसके बाद हमने इसका भी इनपुट ले लिया, इनपुट नेम और यहाँ पे क्या किया, ईमेल, उसका नाम ईमेल ही रखा और उसको हमने यहाँ पर क्लोज किया इसका टैग। उसके बाद हमने पी यूज किया, दोबारा पैराग्राफ टैग यूज किया, लेबल फॉर। अब देखें ये सारे के सारे गेस्ट कॉन्टेक्ट आ गया। अब हमने टैग यूज करना है विल अटेंड और नॉट विल अटेंड। अब उसके लिए ऑप्शन होंगी यस या नो, उसके लिए पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पे हम पहले तो ये किसके लिए यूज कर रहे हैं, विल अटेंड। प्लीज चूज योर ऑप्शन और उसके बाद हमने यहाँ पर एक सेलेक्ट टैग यूज किया। सेलेक्ट टैग में हम कोई भी उसको क्या असाइन कर देंगे, वैल्यू असाइन कर देंगे कि जी वो इस वक्त उसकी वैल्यू क्या है। और ये सिलेक्ट टैग को अभी हमने उसको एम्प्टी रखा। उसके बाद हमने उसको ऑप्शंस देना शुरू कर दी, ऑप्शंस, ये ऑप्शन। अब ऑप्शन की भी कोई ना कोई हम क्या रख लेंगे, वैल्यू रख लेंगे। अब यहाँ पे हमने उसको इक्वल टू यहाँ कर दिया ट्रू कि अगर वो यस करता है तो ऑप्शन में वैल्यू क्या आ जाए, ट्रू आ जाए। और इधर हमने फिर क्या किया, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू फॉल्स अगर वो नो सेलेक्ट करता है, नो। तो ठीक कर लेते हैं, प्लीज चूज योर ऑप्शन और ये क्लोज किया। अब हम इसको डिस्प्ले करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमारे सामने ये लेके आएगा। अब ये देखिए हमने ज्वाइन बटन को प्रेस किया। अब आप देख सकते हैं कि उसने एक फॉर्म हमारे सामने डिस्प्ले कर दिया और ये यस में देखते हैं वो दो ऑप्शंस भी आ रही हैं, यस और नो। और ऊपर हमने लिखवा लिया प्लीज चूज योर ऑप्शन। जाहिर है पॉसिबिलिटी होंगी यस की या नो की, इसलिए दो ऑप्शंस हैं। अब ये ऑप्शंस ये यहाँ पे यूजर अपना डाटा इन करेगा। अब इन करने के बाद क्या करे, अब इन करने के बाद इस डाटा को सबमिट करना है हमने अपने कंट्रोलर के पास ताकि वो कंट्रोलर इसको सेव कर सके। तो वो कैसे इसको करेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने इस व्यू को चेंज करेंगे और इस व्यू के अंदर हम
यूज कर लेंगे बटन, इसका फिर किसके लिए यूज किया, विल अटेंड। अब आ जाए यहाँ पे, हमने फिर एक पैराग्राफ टैग लिया और उसमें हमने इनपुट या बटन डिफाइन किया, बटन टाइप इज इक्वल टू, उसकी टाइप क्या कर दी, सबमिट। और ये देखें बटन को क्लोज किया, ये सबमिट का हमने टाइटल दे दिया। अब हम देखते हैं कि हमारे सामने क्या नजर आया। ये आ गया। अब हमने ज्वाइन के बटन को क्लिक किया, ये सारा आ गया। सपोज हम इसको पहले ऐसे ही क्लिक करके देख लेते हैं। देखें अगेन उसने नो पेज वाज फाउंड फॉर द वेब एड्रेस। अब चूंकि हम कॉल कर रहे हैं रिस्पॉन्स एक्शन मेथड को, किसको कॉल कर रहे हैं, ये कहाँ से कॉल कर रहे हैं, हमने फॉर्म के एक्शन में ये डिफाइन किया कि होम कंट्रोलर पे जाए, go to home controller and execute response action method when this form is submitted। अब ये फॉर्म जब सबमिट होगा तो वो कौन सा मेथड कॉल कर ले, रिस्पॉन्स। तो हम अब वो एक्शन मेथड कंट्रोलर में चूंकि डिफाइन नहीं, तो हम कंट्रोलर में अपना एक्शन मेथड डिफाइन कर लेते हैं एक और यहाँ पर। अब हम नाम रखते हैं पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और उसको हमने क्या कहा, रेस्पॉन्स। ये किया, ये देखें ये हमने एक एक्शन मेथड डिफाइन कर लिया, ये उसकी बॉडी बन गई, लेकिन हम इसमें कोई चीज रिटर्न नहीं कर रहे। दैट्स वाई वो उसने इसको ये स्क्विगल, ये रेड लाइन नीचे वो डिस्प्ले कर रहा है। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ अपना मेथड और कोई ना कोई डिफाइन कर लेते हैं कि वो ये लेने के बाद क्या करे। हमने कहा रिटर्न व्यू। भाई कौन सा व्यू रिटर्न करे, बाय डिफॉल्ट वो इस एक्शन मेथड का व्यू ढूंढने की कोशिश करेगा, इस एक्शन मेथड का व्यू ढूंढने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे चूंकि वो एक्शन मेथड कोई ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो सबसे पहले हम कंट्रोलर में जाकर, ये कंट्रोलर, ये हमारी कंट्रोलर की क्लास, यहाँ पे हमने वो मेथड डिफाइन कर दिया, उसको व्यू ढूंढना है किस नाम से, रिस्पॉन्स के नाम से। चूंकि यहाँ कोई व्यू नजर नहीं आ रहा, हम यहाँ रिस्पॉन्स के नाम से क्या क्रिएट कर लेते हैं, व्यू क्रिएट कर लेते हैं। न्यू आइटम पे आप व्यू के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। न्यू आइटम, यहाँ आकर हमने ASP.NET कोर के आइटम्स देखे, अगेन वही प्रोसेस, ये आ गए और यहाँ आकर हमने उसका नाम RESPONSE रिस्पॉन्स, और इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहाँ आए, यहाँ आने के बाद हमने इस सारे को डिलीट किया और सिंपली लिखवा लिया गॉट योर रिस्पॉन्स, को सेव किया। आप इसको फिर एग्जीक्यूट करने की हमने कोशिश की। ये डिस्प्ले हुआ, हमने ज्वाइन को क्लिक किया, ये आ गया, और यहाँ पे हमने सबमिट का बटन प्रेस किया और देखें गेट योर रिस्पॉन्स, उसने हमें कहाँ तक पहुंचा दिया, गेट योर रिस्पॉन्स। अब हम चाह रहे हैं जो रिस्पॉन्स यूजर ने एंटर किया वो यहाँ हमें डिस्प्ले भी हो जाए, जिस तरह का भी रिस्पॉन्स यूजर ने हमें पास किया है वो हमें यहाँ नजर आना चाहिए। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए अब हम इसको, जो हमने ये होम कंट्रोलर में रिस्पॉन्स एक्शन मेथड लिखा, इसको हम डेकोरेट कर देंगे HTTP पोस्ट वर्ब की मदद से। और फिर हम देखेंगे ये HTTP पोस्ट क्या है। आपको पता होना चाहिए दो रिक्वेस्ट जनरली क्रिएट हो रही होती है HTTP आमतौर पे, गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट इज यूज टू गेट समथिंग
एंड पोस्ट रिक्वेस्ट इज यूज टू चेंज समथिंग। तो यहाँ पे हम पोस्ट रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं और हमने यहाँ पे मेथड कौन सा कॉल किया, HTTP, ये रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे, वो जो गेस्ट हमने एक अपना मॉडल बनाया था उस तरह का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। और जब इसको डेटा पोस्ट होगा, अब देखिए समझना ये इसको क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, फॉर्म सबमिट होगा। फॉर्म जब सबमिट होगा तो वो जो ऊपर हमने 4-5 फील्ड डिफाइन किए हैं, वो फील्ड नाम हमने उनके वही रखे, वो ऑटोमेटिकली ASP.NET कोर इसको मॉडल बाइंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बाइंड कर देगी। और बाइंड करके फिर हमें वो रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। और वो क्या रिजल्ट डिस्प्ले होगा, वो हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं अपनी उस तरह की, जैसे अभी हमने व्यू डेटा में स्ट्रिंग, व्यू बैग में स्ट्रिंग पास की थी, तो यहाँ उसी तरह करेंगे व्यू बैग डॉट। अब उसका कोई आप सुटेबल नाम रख लें। हम यहाँ पर कह लेते हैं गेस्ट इन्फो। और गेस्ट इन्फो में अब हम क्या 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 करेंगे, हम यहाँ इस गेस्ट ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, गेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट। और हमने क्या किया, नेम, गेस्ट नेम लिया। और उसकी हमने फिर क्या की, कनकैटिनेशन की, फिर इसको स्पेस पास कर दिया। फिर हमने कनकैटिनेट किया इसको, किसके साथ कनकैटिनेट कर रहे हैं, गेस्ट डॉट कॉन्टैक्ट। ये देखें ये आ गया। फिर हमने इसको कनकैटिनेट किया, ये स्पेस दी बीच में, और यहाँ पे हमने उसका ईमेल पास कर देंगे, GUEST गेस्ट डॉट ईमेल। ये देखिए ई प्रेस किया, ये आगे इंटेलिसेंस से हमने इसको सेलेक्ट किया, ये हमारी एक सिंपल सी स्ट्रिंग बन गई। अब इसको हमने डिस्प्ले कराना है अपने रिस्पॉन्स व्यू में। अब यहाँ आकर व्हाट वी विल डू, हम सिंपली क्या करते हैं, ऐड सिंबल यूज करेंगे। और किसको यूज कर लेंगे, व्यू बैक को। और उसमें हमने लिखा था गेस्ट इन्फो, ये हमने लिखा था, इसको सेव किया। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि आया ये इंफॉर्मेशन इसको मिल रही है या नहीं मिल रही है। Now we will click again join, and we will type here Fayyaz contact 123456789, email abc at yahoo.com, ये whatsoever, ये yes को हमने क्लिक किया और हमने बटन प्रेस किया सबमिट। नो get your response, this is the response, get your response, this is the name, this is the contact and this is email address। अभी हमने तीन ही उसको फील्ड पास किए थे। अब अगर हम उसको ट्रू या फॉल्स जो भी हमने सेलेक्ट किया है वो भी डिस्प्ले कराना चाहें तो हम उसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो डाटा हमने यहाँ डिस्प्ले किया है, इसको किसी जगह स्टोर करेंगे और फिर बहुत सारे यूजर का जब हमें रिस्पांस मिल जाएगा तो उनको हम फिर तमाम को डिस्प्ले भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। डियर स्टूडेंट, this is the summary of our today's lecture. We started from an overview of ASP.NET Core application. Then we discussed the structure for ASP.NET Core project, and we discussed the details of the elements created by the template for us. In the last, we created a demo application. Dear student, feel free to ask any question. Thank you. Allah Hafiz.